Good morning, students. I am Prashant Kumar. Now, we will discuss today in this video the second chapter of your accounting, and the chapter name is Basic Accounting Terms. So, what is the use of this chapter? In this chapter, we will studied all the accounting terminology which we used, which are helpful in class 11 accounts of you. So, the very first transaction is business transaction. Business transaction is a combination of two words, business plus transaction. It means in business transaction, we will record all those economic activity which are related to business. Whenever transaction related to assets, transaction related to liabilities, or transaction related to कैपिटल. बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में अक्कर होती है, बिजनेस में होती है, हैपन होती है, एज एन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. इट मीन्स one thing must be noted that the transaction must be economic, but it should be related to business. ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन गिव वन गिफ्ट to his friend on his birthday. That is economic, but this transaction is not related to business, so it will not record in the books of accounts. So business transaction means all those economic activity related to business. Other one is event. Event means any particular event happen. Goods purchased, event. Salary paid to an employee, event. Purchasing goods, event. Making sale, event. Payment of go down rent, event. All these are event. Other one is accounts. Accounts means a simple like nature or recorded, added and subtracted at one place. It means जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड होता है वो सब एक ही जगह रिकॉर्ड करना, उसको वहीं ऐड करना, वहीं उसको सब्ट्रैक्ट करना, वहीं उससे रिलेटेड सारी चीजों को रिकॉर्ड करना, डेट इज कॉल्ड अकाउंट. An account is a ledger record in summarized form of all transactions that have taken place with the particular person or things specified. यानी कि अकाउंट एक ऐसा समराइज फॉर्म है जिसमें हम वो सारे ट्रांजैक्शन लिखेंगे जो किसी एक पार्टिकुलर चीज से रिलेटेड है, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंस से रिलेटेड हो. ये ध्यान रखना, एक ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रिकॉर्ड करने को हम. नेक्स्ट, कैपिटल. व्हाट इज कैपिटल? Capital is most important term which we used in accounts, whether we are belong to 11th class or 12th or any other class. So students, capital is that amount which is invested by the owner for starting a business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा बिजनेसमैन ने लगा रखा है उसको हम कहते हैं कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, I have invested rupees 1 lakh for starting a business. So that is called capital. कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन कैश में भी हो सकती है. बिजनेस स्टार्ट करने में हम पैसा भी लगा सकते हैं, या बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम गुड्स भी लगा सकते हैं, या कैश और गुड्स दोनों लगा सकते हैं. अदर थिंग, ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द प्रोपराइटर फॉर इट्स पर्सनल यूज. ऐसा पैसा जो प्रोपराइटर ने विड्रू कर लिया है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग. अनदर वन, लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स कमिटमेंट. लायबिलिटी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. Responsibility means if we have to paid a sum to any other person which are related to business in future, it is called liability. यानी कि ऐसा पैसा
अगर हमें किसी को देना है बिजनेस से रिलेटेड, सामान उधार खरीदा, बाद में पैसा देना है, बैंक से लोन ले लिया बिजनेस करने के लिए, बाद में बैंक का पैसा देना है, तो ऑल आर liabilities. This liability are divided into different parts. First one is internal liability, means the amount which is returned to the person who related to the business. It's internal. But the amount which we pay to that person which is outside from the business, then it's called external liabilities. Non-current liabilities are those liability which we have to paid after a period of 12 month. ऐसी liability जिसका हमें पेमेंट करना है 12 महीने के बाद, वो बाद का कितना भी समय होना चाहिए, वो है नॉन करेंट लायबिलिटी. लेकिन ऐसी लायबिलिटी जिसका पैसा हमें पेमेंट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, तो वो हो गया हमारा करंट लायबिलिटी. अनदर थिंग, एसेट्स. एसेट्स मीन्स बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो जो चीजें हमें जरूरी हैं वो सारी हमारी क्या हो जाएंगी, एसेट्स. फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, computer, typewriter, all are comes in assets. These assets are further divided into non-current assets. Non-current assets वो वाली assets होती हैं जो comparatively costly होती हैं और जिससे मिलने वाला benefit long period के लिए होता है. For example, land and building, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल एंड सो ऑन. यानी कि वो चीजें जो कॉस्टली होती हैं और बिजनेस में जिनसे बेनिफिट मिलता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स. नाउ नॉन करंट एसेट्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स. फर्स्ट वन इज टेंजिबल एसेट्स, द एसेट्स विच वी सीन इन अवर नेक्ड आईज, जिसको हम आंखों से देख सके. बिल्डिंग हम देख पा रहे हैं, फर्नीचर हम देख पा रहे हैं, डेट आर टेंजिबल एसेट्स. बट कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो होती तो हैं लेकिन उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एनी एप्लीकेशन यू हैव डाउनलोडेड इन योर कंप्यूटर, इन योर फोन, तो ऑल आर रिलेटेड टू इनटेंजिबल एसेट्स. सिंपल सा है, टेंजिबल वो जो हमें दिखती हैं जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, इनटेंजिबल वो जो होती तो हैं लेकिन उनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता. अदर वन इज करंट एसेट्स. करंट एसेट्स वो वाली एसेट्स जिनसे हमें बेनिफिट मिलता है अप टू द 1 ईयर. 1 साल तक जो बेनिफिट मिलेगा वो हो जाएंगी हमारी करंट एसेट्स. 1 साल से ज्यादा अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो हो जाएंगी नॉन करंट एसेट्स. जैसे आपकी बुक 1 साल तक हेल्प करेंगी, करंट एसेट्स. लेकिन आपका शूज, आपके बैग, ये 1 साल से ज्यादा काम करेंगी, ये हो जाएंगी नॉन करंट एसेट्स. अनदर थिंग, फिक्टिशियस एसेट्स. ऐसी एसेट्स जिसको हमने पैसा, भाई बिल्डिंग खरीदने के लिए वी पे मनी, पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अब हम उस बिल्डिंग को बेचेंगे तो पैसा कुछ ना कुछ तो हमें जरूर मिलेगा. लेकिन कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको एक्वायर करने के लिए वी पे मनी, बट उससे कोई हमें रियलाइजेबल वैल्यू फ्यूचर में नहीं होगी. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में हमने बहुत हैवी अमाउंट एडवर्टीजमेंट का स्पेंड कर दिया, अब हम अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं तो उससे हमें कोई भी पैसा रिटर्न में नहीं मिलेगा. दीज आर फिक्टिशियस एसेट्स और नॉमिनल एसेट्स. नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट? दिस इज द मेन. रिसिप्ट का मतलब आना, तो कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट इन विच आवर लायबिलिटी इंक्रीज एंड एसेट्स डिक्रीज. ध्यान देना, ऐसी रिसिप्ट जिससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी और एसेट्स डिक्रीज होगी वो होंगी कैपिटल रिसिप्ट. लेकिन ऐसी चीजें जिनसे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता वो हो जाएंगी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट. एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं खर्चा, लेकिन अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर से
है खर्चा, लेकिन इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर वन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड लास्ट वन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच वी इनकर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ एनी एसेट्स, परचेजिंग ऑफ बिल्डिंग, परचेजिंग ऑफ मशीनरी, इन सब चीजों के लिए जो हमने खर्चा करा है डेट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में गुड्स को सेल करने में हमारा यूज हुआ है, बिजनेस के सामान को सेल करने में जो यूज हुआ है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी शॉप पे इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, सर्वेंट लगा रखे हैं, पानी का कुछ खर्चा है, तो वो सब किससे रिलेटेड है? जब कस्टमर आएगा सामान खरीदेगा तो वो उससे रिलेटेड है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम खर्च तो एक बार करते हैं लेकिन उससे मिलने वाला बेनिफिट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा पैसा जो आपने स्पेंड कर दिया एडवर्टीजमेंट में, बहुत हैवी अमाउंट कर दिया, लेकिन जो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा वो 1 साल तक नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी फ्लेक्सी हमने लगवा ली अपने बिजनेस के लिए, खर्चा तो एक बार हुआ लेकिन इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो 1 साल से बहुत लंबे समय तक मिलेगा, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदर वर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब सैलरी पे कर दी, एक्सपेंस हो गया, सामान खरीद लिया, एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इनकम। इनकम मीन्स income is different from revenue. See, there are two words. सामान बेच के जो हमारे पास पैसा आता है, एक 100 रुपए की चीज मैंने 120 रुपए में बेच दी, तो 120 हो गया रेवेन्यू, जितना पैसा मेरी जेब में आया। लेकिन वो चीज 100 रुपए की थी, बेची मैंने 120 में, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे कितना फायदा हुआ, जिस चीज के लिए हम बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं, तो डेट इज कॉल्ड इनकम। इनकम का मतलब हमारा प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट, अभी मैंने प्रॉफिट और इनकम दो चीजें अब आ जाएंगी। प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट से मेरा मतलब कोई हमने बिजनेस में एक बिल्डिंग खरीदी कभी, आज हमें लग रहा है वो बिल्डिंग छोटी है, अब हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है। उस बढ़ाने के लिए जो बिल्डिंग कभी हमने 10 लाख में खरीदी थी, आज वो 12 लाख में बेच दी, तो वो 2 लाख का जो होगा वो है तो हमारा ही, लेकिन वो हमारे 2 लाख रुपए का जो फायदा हुआ है वो बिजनेस के सामान बेचने से नहीं हुआ, तो डेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अदर वर्ड गेन। गेन मीन्स एनी मॉनेटरी income earned in business. For example, incidental expense, any lottery receive, मैं लॉटरी ले ली, हमने लॉटरी मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा? गेन। अदर वर्ड लॉस। लॉस का मतलब कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी, आउटडेटेड हो गई, फैशन में नहीं है, वो हमने 100 रुपए की चीज मजबूरी में 80 रुपए की बेच दी, तो वो 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस। अदर वन परचेज, जो भी सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, अगर मेरा स्टेशनरी का काम है तो स्टेशनरी मैंने खरीदी जिसको मैं बाहर आगे जाके ज्यादा रेट पे बेचूंगा, तो वो हो गया परचेज। परचेज रिटर्न, जो सामान हमने खरीदा और सामान खरीदने के बाद कुछ सामान एक्सपायरी हो गया, नहीं बिका, तो वो हो गया परचेज रिटर्न। सेल्स, वो गुड्स जो हमने खरीदा था वो गुड्स हमने बेच दिया, दैट इज सिंपल सेल्स। सेल्स रिटर्न, कुछ ऐसा सामान जो हमने बेचा लेकिन वो हमारे पास वापस आ गया, कस्टमर को वो पसंद नहीं आया, उसने वो सामान मुझे वापस कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अदर द लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पेज, स्टॉक। स्टॉक का मतलब 1 लाख रुपए का सामान हमने खरीदा, अब ऐसा जरूरी तो नहीं है सारा का सारा सामान सोल्ड हो जाए। इफ वी परचेज गुड्स 1 लाख
एंड वी सोल्ड गुड्स ऑफ ₹80,000। 1 लाख का सामान खरीदा, 80,000 का सामान हमने बेच दिया, तो जो 20,000 रुपए का सामान बच गया वो हो गया स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। इट मीन्स गुड्स वी परचेज्ड, सामान हम खरीदते हैं बेचने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो सामान हम नहीं बेच पाते, वो सामान नहीं बिक पाता, तो वो खराब नहीं हुआ, बाद में बिक जाएगा, डेट इज कॉल्ड स्टॉक। अब ये स्टॉक भी 3 तरीके का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स। अब देखो तीनों चीजें बहुत ध्यान से हमें समझनी है। स्टॉक का मतलब मैंने आपको ये बताया, स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको ये बताया, ऐसा गुड्स जो हमने खरीदा लेकिन वो नहीं बिक पाया, तो हो गया स्टॉक या इन्वेंट्री। अब ये इन्वेंट्री भी हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। फर्स्ट, रॉ मटेरियल, सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस, और थर्ड, फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल मीन्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं एक फर्नीचर डीलर का, जिसका काम वुड, लकड़ी खरीद के फर्नीचर बना के बेचना है। अब उसने कुछ लकड़ियां खरीदी, वुड खरीदी, टिम्बर खरीदी फर्नीचर बनाने के लिए। अभी वो उसी फॉर्म में है, जिस फॉर्म में उसने लकड़ियां खरीदी उसी फॉर्म में अभी हैं, तो हम इसको बोलेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड वन, उसने उस वुड को कन्वर्ट कर दिया फर्नीचर बनाने में, लेकिन अभी फर्नीचर वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अभी वो रेडी नहीं है सेल करने के लिए, तो वो हो गया इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि हमने उसकी शेप तो बदल दी है, लेकिन पूरी तरीके से वो सामान बेचने के लिए अभी तैयार नहीं है। लास्ट वन, फिनिश्ड गुड्स। अब उस टिम्बर से हमने बेड बनाना था, उस टिम्बर से हमने टेबल बनानी थी, चेयर बनानी थी, वो चेयर बन गई, लेकिन वो चेयर अभी सोल्ड नहीं हुई है, तो वो हो जाएगा फिनिश्ड गुड्स। अभी उसी शेप में है, रॉ मटेरियल, पूरी तरीके से तैयार नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, और तैयार हो गया लेकिन बिका नहीं है, डेट इज कॉल्ड फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब, देखो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ऐसा सामान जो हमने अपने बिजनेस में बेचा है लेकिन अभी हमें उसका पैसा नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। इट मीन्स द गुड्स सोल्ड बट मनी इज नॉट रिसीव्ड, दैट इज TR, ट्रेड रिसीवेबल। This trade receivable we will divide into 2 parts. First one is debtor, other one is bills receivable. जिसको हमने सामान दे दिया, पैसा उसने उससे नहीं मिला, तो वो हो गया डेटर्स। लेकिन ऐसा पर्सन जिसको हमने उधार सामान बेचा, पैसा उससे भी नहीं मिला, लेकिन उसने कोई चीज अभी हमारे पास अपनी गिरवी रख रखी है कि भैया हम इतने दिन बाद आएंगे, पैसा दे देंगे और वो सामान अपना ले जाएंगे, तो वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। सेम थिंग, ट्रेड पेबल, हमने सामान खरीदा उधार, पैसा नहीं दिया, ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स, उस बंदे के पास कोई हमारी सिक्योरिटी नहीं है, क्रेडिटर्स। BP, एक चीज हमने उसको गिरवी रख दी कि भैया ये सामान रख लो, जब हम पैसा देने आएंगे तो ये सामान आपका वापस ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा BP, बिल्स पेबल। गुड्स, गुड्स क्या होता है, किसी भी चीज की जो हमारी दुकान है उसको गुड्स कहते हैं। कपड़े का काम, क्लॉथ इज गुड्स। स्टेशनरी का काम, स्टेशनरी इज गुड्स। ग्लास का काम, ग्लास इज गुड्स। अदर वन इज कॉस्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्ट का मतलब जो भी चीज हमने खरीदी बेचने के लिए, मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपए का, दिल्ली से लेके आया कि भैया बिलासपुर में सामान जाके बेचना है, उसको वहां से लाने में 1 रुपया मेरा खर्च हो गया, तो 10 + 1 11 इज इक्वल टू कॉस्ट। अदर वन इज बाउचर। बाउचर का मतलब ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो इस बात का एक प्रमाण दे कि वो ट्रांजैक्शन हुआ है, बाउचर। आपने स्कूल की फीस जमा करी, स्कूल से आपको रिसिप्ट मिली, डेट इज कॉल्ड बाउचर। आपने बैंक में पैसा जमा करा, बैंक में पैसा जमा करने के बाद आपको एक स्लिप मिल जाती है, डेट इज कॉल्ड बाउचर। नेक्स्ट,
डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का मतलब इट इज अ रिबेट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। एक सामान बेचने वाला जब डिस्काउंट देता है कस्टमर को तो वो कहते हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट भी टू कैटेगरी की है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो हर कस्टमर को मिलती है चाहे वो पैसा कैश में दे या ना दे। द डिस्काउंट विच इज रिसीव बाय अ पर्सन वेदर ही इज पेइंग इन कैश और नॉट इज कॉल्ड trade discount. But the discount which is available only to that person who made the amount in cash is called cash discount. Goods and service tax, all we are aware, the tax which charged by the government single time, GST. एंट्री, कोई भी चीज बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगी, एंट्री, बैड डेट, अगर हमें कहीं से पैसा लेना है, हमने सामान उधार किसी को बेचा और 100 रुपए का सामान बेचा, उसने हमें 100 रुपए नहीं दिए तो वो हो गया बैड डेट। वो पैसा मजबूरी में नहीं दे रहा है, वो बैड डेट हो गया। लेकिन मान के चलो उसके पास पैसा देने के लिए ही नहीं है तो वो हो गया इंसॉल्वेंट। स्टोर्स, कुछ सामान हम अपना गोडाउन में रखते हैं, वो बेचने के लिए नहीं है। भाई एक मशीन से कपड़ा बनाते हैं, वो मशीन हमें बेचनी नहीं है, हमें बेचना है कपड़ा। लेकिन कभी उस मशीन में टूट फूट हो सकती है, कभी उस मशीन में मोबिल ऑयल वगैरह लग सकता है, तो वो हम कहते हैं स्टोर्स। रेवेन्यू, रेगुलर इनकम, ऐसी इनकम जो बार बार हमें मिलेगी, अगेन एंड अगेन। रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसी इनकम जो हमें बिजनेस करने से मिल रही है। ऑपरेशन का मतलब बिजनेस एक्टिविटी से है। एंटिटी, एंटिटी का मतलब किसी भी पर्सन जो एक अपना बिजनेस करता है वो हो जाती है एंटिटी। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फॉर्म फॉर अर्निंग इनकम। इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी चीज हम करते हैं, एग्जाम्पल इसमें लिखें, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी, ये जो भी आप नाम देख रहे हो ये वो बिजनेस हैं जो बिजनेसमैन ने स्टार्ट करे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। उसको एक नाम दे दिया पहचान के लिए, डेट इज कॉल्ड एंटिटी। किसी को पहचान करना, एंटिटी। अनदर वन, टर्नओवर, जो सामान हम पूरे साल में बेचते हैं उसको अकाउंट्स में टर्नओवर कहते हैं। लाइव स्टॉक, ऐसे एनिमल्स जस्ट लाइक कैटल, हॉर्स, अगर वो भी हम बिजनेस में यूज करते हैं, लाइव स्टॉक। एंड लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट, इट इज दैट which if we have invested some money into any other for earning more profit, हमने कुछ अपना पैसा कहीं लगा रखा है ज्यादा प्रॉफिट के लिए, तो हम उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। So students, this is the chapter which is very important for understanding the word which we used in accounting. So you have to read it, you have to listen it very carefully, and these all are things which I telling you must be mind, that these are the base of all the chapters which we studied. Thank you.